Good morning students, welcome back to our online sessions of Maths class 10. Before discussing this topic, I hope you all are fine to your homes with your families. So I requested in pandemic situations, don't go unnecessary outside your homes. So be safe, stay home, stay safe. Now in the topic of the trigonometrics, that earlier parts when we discussing about part 1 and part 2 of exercise 8.1 and 8.2 based, we are discussing about the trigonometrics concept in which trigonometric ratios for the angles and the trigonometric ratio for the angles of some values that we are discussing in our previous classes, in which what is called ratios. The ratios is more generally in the right angle triangle, comparison between the two sides of a trigonometrics of a triangle, it's called trigonometric ratios. As well as for the some values, we have also been discussing how we can find the 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree is a part of the trigonometric ratios with sine, cos, tan, cosec, sec and cot that we are discussing into our 8.1 and 8.2. Now for today's lecture, we are discussing about the ratios of the complementary angles. Generally, we know that if the complementary angle having the values is 90 degree, complementary angle having the value of 90 degree, like when two angles having the sum is 90 degree, then it is called complementary angle, that we have already discussing into the triangles properties in the previous classes. So based on that angles measure, we have to be find out the trigonometric ratios of the complementary angle. Now the complementary angle generally, if we studied in the previous concept like inverse ratios and the trigonometric ratios. Trigonometric ratios, sine for what? Opposite upon hypotenuse, cos is adjacent upon hypotenuse, tan is opposite upon adjacent, cosec is what? Hypotenuse upon opposite, sec is what? Hypotenuse upon adjacent, cot is what? Adjacent upon opposite. This is generally a trigonometric ratios what you have to study in your previous classes. Also, you are discussing about the ratios of trigonometrics in which sine is always be 1 upon cosec, sec is always be 1 upon cos, tan is always be 1 upon cot. It means sine into cosec always be 1, tan into cotec always be 1 and sec into cosec always be 1. That is generally a part of trigonometric ratios that you have studied into your previous lectures. Now, what about the complementary angles of a trigonometric ratios? Now, complementary angle generally based onto the 90 degrees. So, when we apply sine 90, cos 90, sec 90, cosec 90, tan 90, cot 90, it generally gives its complementary angle. For example, if I will write here sine 90 degree minus theta, okay. So, the complementary of sine, it always will give you cos. The sine 90 minus theta, whatever the value of here theta, it may be any angle. From 0 to 90, it may be any angle that is represented by the theta. So obviously sine 90 it becomes cos, and whatever the value of theta as a form of numeric value that can be written here. As well as if you write cos 90 degree minus theta, it always will give you sine theta. Okay. Similarly, tan 90 minus theta, it gives you cot theta, as well as cot 90 degree minus theta, it will give you tan theta. Similarly, sec 90 minus theta, that you will give cosec theta, and cosec 90 minus theta, that will give you sec theta. So these are the generally comparisons of a complementary angle based on the sine is always be complementary of cos, cos is always be a complementary of sine, tan is always be complementary of cot, cot is always be complementary of tan. Similarly, sec is complementary of cosec and cosec is complementary of sec. So these are the generally topics as a part of the trigonometric ratios for the complementary angles that we have to use in this exercise. So whatever the value of the theta, that should be represented as any numeric value from 0 to 90, which can be written directly as a part of that. So these are the generally formulas for the trigonometric ratios for the complementary angles that we use in our exercise of 8.3, which is available in your textbook. So now using of this
formulas we apply to evaluate the values of exercise 8.3, which is a part of the questions which is available in your textbook. So now let me start to solve this type of the evaluations part, to how to evaluate these questions. So first topic is called evaluate. Now we are using the evaluate topic. It is a very easy to find out the evaluate. Okay, so evaluate. So we'll take slightly from the simple questions that should be like from the medium questions and should be moving on the high questions. So I'll formation of using as any part of the complementary angles to find out. So it is necessary to will using sine 18 upon cos 72. First example, sine 18 degree upon cos 72 degree. Now first of all, if you want to convert that composition of sine and cos, there is a two methods in which both you can be easily implemented. I'll use both methods to solve this type of evaluation as a part of complementary angles. First of all, if you want to evaluate is the two different trigonometric ratios. One is sine, another is cos. There is two trigonometric different ratios. One is called sine, another is called cos. It is a sine 18, it is cos 72. Now as a part of the evaluations, if you want to find out the value of these trigonometrics as a part of complementary angles, it is the basic things to necessary to, if you want to eliminate these things, so both ratios will be same. If here will be sine, then denominator will be sine. If denominator is cos, then numerator must be cos. So we have to be use any one of these trigonometric ratios which is converted into the trigonometric ratio for the complementary angles which is based on to the denominator. So will the both will be same, then we can be easily denoted. Now I'll just convert the sine 18 as a part of complementary. Now how can we convert it? See that sine 90 degree minus. Now in the previous formula which we were discussing earlier, sine 90 is a complement of what? Cos. So sine 90 means what? It becomes cos, but I have a value of 18, sine 18. I'll write sine 19. So which value that I have to subtract it from 90, so I'll get 18 is 72. So sine 90 minus 72. Then what? Sine 90 minus 72, it becomes sine 18, right? And denominator as it is, you write cos 72, right? Simple conversion. Now sine 90 complementary is what? Cos. So cos theta, theta is what? 72, that becomes cos 72. Cos 72 upon cos 72. Both are eliminated, answer will be what? 1. So it is very easy. If you want to evaluate this type of the complementary angles value, it must be to convert it in a specific formation of trigonometric ratios with both will be same. Then you can easily convert it in a form of other value. Now if you want to find out another form, अगर आप इसको अलग तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इसको दूसरा मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. कैसे इसको सॉल्व करना होगा? हाउ कैन वी सॉल्व? सी दैट. और दूसरे तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो साइन 18 को मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 18. ठीक है, सिंपल. ये वैल्यू एज इट इज़ रखो, साइन 18 का 18 ही रखो, और साइन है तो उसके लिए क्या लिख दिया आपने? कॉस 19 डिवाइडेड बाय कॉस 72. कॉस 72 तो दोनों वैल्यू सेम हो गई. कॉस 72 अपॉन कॉस 72 दोनों एलिमेंट हो जाएंगे. आंसर क्या मिलेगा? 1. आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आंसर आपको सेम ही मिलेगा. तो एकदम इजी है. कैसे समझ में इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे ही फॉर्म में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ. tan 26 और cot 64. tan 26 और cot 64 ऐसा एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं. tan 26 एंड cot 64. tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री. ठीक है, आप अपने हिसाब से आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. मैं अपने हिसाब से उसको सॉल्व करता हूँ. सो देयरफॉर पहले तो मुझे tan को cot में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan 90 डिग्री. ठीक है, tan 90 डिग्री दैट इज कन्वर्टेड इन cot.
पर यहाँ पे कौन सी वैल्यू है 26 है, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि मुझे 26 मिलेगा 64। 90 माइनस 64 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 26 अपॉन cot 64। सो 1090 क्या हो गया आपके पास, cot हो गया cot 64 डिवाइडेड बाय cot 64। cot 64 डिवाइड हो गया, आंसर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो अगर किसी भी टर्म्स में ऐसे इवोल्यूट करना है तो आप इसको इजीली इवोल्यूट करके वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। एक और ऐसा ही एग्जांपल लेता हूँ, cosec 31 माइनस sec 59, ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ। cosec 31 माइनस sec 59 ना, इसको मुझे इवोल्यूट करना है। ठीक है, इसको अगर मुझे इवोल्यूट करना है ना तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ में से मुझे किसी एक को उसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, तो किसी एक को आप कन्वर्ट कर दीजिए। मैं कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, राइट। कॉसेक 90 माइनस 59 कॉसेक 31 हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस 51 क्या होगा, कॉसेक 31, और ये वैल्यू है आपके पास सेक 59 डिग्री। ना कॉसेक 90 माइनस 51, कॉसेक 90 सेक हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59, दोनों वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 0। आंसर क्या मिलेगा आपको 0। तो ऐसे सिंपल फॉर्मेशन से आप इसको इवोल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और ऐसा ही एग्जांपल लेता हूँ कि कैसे आप उसको इवोल्यूट करेंगे, उसको हमें प्रूफ करने के फॉर्म में लेना होगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है कि 1048, 1023, 1042 और 1067, उसको सॉल्व करते हैं। आपका जो 5th क्वेश्चन है वो दिया है 1048 डिग्री इंटू 1067, 1048 इंटू 1067 इंटू 1028 और 1042, 42 और 1028। चलिए ऐसा क्वेश्चन हमें दिया है 1048, 1067, 1042 और 1023, सॉरी 67 है ना, 23 है, 23। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले किसी भी, जैसे हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज 10 में है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक्स के जो रेशियोज ऑफ एंगल्स होते हैं उसमें 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 और 90 है, उसके अलावा तो ये वैल्यूज़ है नहीं। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, किसी भी, जैसे हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के इन्वर्स है, tan इज इक्वल टू 1/cot होता है, तो tan इंटू cot अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों को आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। tan इंटू cot आपको क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। तो मुझे उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे 2 tan की वैल्यू है तो 2 मुझे cot में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, 1048 और 1042 दोनों को एज इट इज़ रखता हूँ, 1048 और 1042 को एज इट इज़ रखता हूँ, या तो आप 1067 और 1023 उसको भी आप सेम रख सकते हैं, 1042 और 10 उसको मैं सेम रखता हूँ। चलिए, तो 1048 है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ cot के अंदर। सो 1090 माइनस 42, 1090 माइनस 42 क्या हो जाएगा 1048। यहाँ भी मैं लिखता हूँ 1090 माइनस 23, 1090 माइनस 23 क्या हो जाएगा 1067 हो जाएगा। अब ये जो दो वैल्यू है 42 और 23 उसको एज इट इज़ रखिए, ये दो वैल्यू को एज इट इज़ रखिए आप, क्योंकि दो वैल्यूज़ आपने कन्वर्ट कर दिए तो बाकी सबको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1042 और 1023, ठीक है। सो देयरफॉर 1090 cot हो जाएगा तो cot 42 इंटू cot 67, सॉरी cot 90 माइनस 23, तो cot 23 हो जाएगा, और यहाँ पे 1042 है और वो cot 42 1023 है, ठीक है। चलिए आपने सारी वैल्यूज़ लिख दी। अभी cot 42 और 1042 दोनों की वैल्यू सेम फॉर्मेशन में, तो उसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, 1042 इंटू cot 42, दूसरे ब्रैकेट में 1023 इंटू cot 23, 1023 इंटू cot 23 लिख दिया आपने वैल्यू। सो 10 इंटू cot क्या होता है 1 होता है।
सो राइट 1, 1 इंटू 1, आंसर क्या मिलेगा आपको 1. तो विल गॉट द आंसर इज 1. तो ऐसे जनरली हम उसको एवोल्यूट करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो है ना एकदम इजी. कैसे आप इसके अंदर रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करेंगे और कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें आपको प्रूफ करने को दिया है. जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें प्रूफ करने को दिया है. प्रूफ करने को दिया है आपको कि cos 38 इंटू cos 52 उसका यूज़ करते हैं so that cos 38 इंटू cos 52. ठीक है, cos 38 माइनस cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0. ऐसा मुझे प्रूफ करना है. दैट आई हैव टू बी प्रूफ. तो ऐसा अगर आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो इफ़ यू सीन दैट द क्वेश्चन, यहाँ पे दो आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ है कॉस के फॉर्म में है, यहाँ पे दो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ है वो साइन के फॉर्म में है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले किसी भी दो में से एक को साइन में और एक को कॉस में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि 0 लाना है. तो ये वैल्यू अगर साइन है तो ये वैल्यू भी साइन होनी चाहिए. तो साइन माइनस साइन क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा. तो इस कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस साइन की वैल्यू को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दोनों में से किसी एक मेथड का आप अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं इस कॉस की वैल्यू को साइन में कन्वर्ट करता हूँ. तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस 90 माइनस 52. राइट, कॉस 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा, कॉस 38. और कॉस 90 माइनस 38 वो क्या मिलेगा आपको, कॉस 52 माइनस साइन 38 एज इट इज़ रखिए इंटू साइन 52 को भी आप एज इट इज़ रखिए. साइन 38 इंटू साइन 52. अभी कॉस 90 माइनस 52, कॉस 90 क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू ये भी क्या हो जाएगा कॉस 90 साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री. तब देखिए साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 52 इंटू साइन 38 दोनों एलिमिनेट हो जाएगा. आंसर क्या मिलेगा आपको, 0. तो इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को आप इंप्लीमेंट करके सॉल्व कर सकते हो. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट है. चलिए, अभी ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे. अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है उस तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं. मोस्ट ऑफली 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. ये भी इसी फॉर्म में होगा. कैसे फॉर्म करना है, दैट इज़ फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज ए की मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी. जैसे क्वेश्चन हमें दिया है इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री देन फाइंड ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. राइट, इफ़ tan a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है. तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जैसे यहाँ पे हमें LHS दिया है आपको, पहले वो लिख दीजिए. tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री. नाउ अगर कोई भी नंबर्स हमें सॉल्व करने एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो यहाँ पे LHS का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 10 है और RHS का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कॉट है. तो एक का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 10, एक का कॉट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का बैलेंस करने पड़ेंगे. उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करेंगे. तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करता हूँ. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा tan 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18. सो tan 90 क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा. तो हम यहाँ लिखेंगे cot 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18. अभी दोनों के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम हो गए तो कॉट और कॉट को आप कैंसिल कर सकते हो. दैट विल बी एलिमिनेटेड. सो आंसर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, है ना. सॉरी, स्टिल 90 इज देयर ना. 90 माइनस 2a
1 सेकेंड, देयर इज अ स्लाइटली मिस्टेक इन माई क्वेश्चन. 90 माइनस 2 है, ऐसा मुझे लिखना होगा. यहाँ पे मुझे कॉट लिखना था. कॉट 90 तो 10 होता ना, सॉरी, आई राइट हियर कॉट 90. कॉट 90 माइनस 2 है, 10 होगा. सो एक कॉट और कॉट एलिमेंट होगा. सो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18. सो देयरफॉर 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a इज इक्वल टू 108 इक्वल टू 3a. सो a इक्वल टू 36. सो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 36. यहाँ पे मुझे कॉट 90 तभी 10 होगा. 10 90 तो कॉट हो जाएगा, पर मुझे एक्चुअली इक्वेशन तो 10 का था, इसलिए मुझे कॉट लिखना था वहाँ पे. चलो ये क्लियर हो गया. ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको लिखता हूँ जो आपको समझ में और आएगा. ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं जो आपको ईजी रहेगा. जैसे sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20. ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ. इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20. यहाँ भी आपको a फाइंड करना है. यहाँ पे भी मुझे क्या फाइंड करना है? a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो वही मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बैलेंस करने पड़ेंगे. sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20. राइट, लिख दिया मैंने. यहाँ पर sec है, यहाँ पे cosec है, तो इस sec को मुझे cosec में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मुझे लिखना पड़ेगा cosec 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री. राइट, तो cosec और cosec आपका एलिमेंट हो जाएगा, दोनों सेम है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20. राइट, चलिए इसको प्लस कर दीजिए. 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a. 110 इज इक्वल टू 5a. a की वैल्यू मिलेगी 22 डिग्री. सो बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप ऐसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. समझ में आया? तो आई होप कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया होगा. इसी तरह के क्वेश्चंस और भी मैं प्रैक्टिस करना है आपको. और भी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, आप उसको रिवाइज करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय यूजिंग डिजिटल mediums of the studies. So students will meet tomorrow with the other topics of the trigonometrics. Still revise this type of questions and be safe at your home, stay safe. We'll meet tomorrow with the new topics of the trigonometric. Till bye.